This program is mainly focused for youth community of our generation, but in this regard, we are in some facing bottlenecks. In future, we will be trying to remove these bottlenecks, but today's program is of immense importance because from the highest part of our ministry, Ministry of Youth and Sports, they have formalized the program, and all over India it is being observed. And now I will ask and request our DC Madam to say a few words as a encourage. Please, Madam. सभी को नमस्कार. Officers of the university, dear faculty members and students. I am glad to see all of you here today assembled to observe Nasha Mukt Bharat Drug Free India Day. This is a very responsible pledge that we are going to take today. This is not as much for our generation as it is for the younger generation, the students, because you see the things happening in the country today vis-a-vis our youth. A lot of mental health issues they are going through, suicides are happening, and about their career plans, they feel directionless. They need our guidance, they need our support as their professors, their guides. So this day that we are celebrating in the country, and the Government of India or Prime Minister Shri Narendra Modi ji is going to address us directly. Also the Government of West Bengal, our Honorable Chief Minister and Honorable Chancellor, our Governor, our Honorable Education Minister, all of them are going to join this celebration to guide our youth. Let us take this assignment very seriously, that we are here to support, guide and help our youth towards a better future, a very strong mental and of course physical health, and proper career planning and a very positive living. We are here to support them for a better life, to create a better life. I am very happy and proud to put it on record here that the officers of the university and the faculty members of the university, they have always been so responsible. The office staff, the support staff of the university, they have always behaved in a very responsible manner. Working in Hindu University since 1.5 years, unlike most universities, I have never faced any internal problem. Our faculty members have supported. Whenever I have requested anyone to do anything good, vis-a-vis NSS, she was doing. So everyone, any lecture series or any important work related to examination or any translation workshops for students or syllabus design, whatever assignments I have given our faculty members, they have taken it very, very seriously. I want all of you to pass on that seriousness, that commitment that you have towards your career. Please pass it on to the next generation, to our students. So this day is extremely important. Let us listen to our Honorable Prime Minister very carefully, take down his points and implement whatever he says in word and action, in spirit and action in Hindu University, West Bengal. Let's have a positive life. Thank you very much. Dear colleagues, let us take this pledge with the Government of India and with the Government of West Bengal today. Our students and faculty and officers and staff, please join me. Nasha Mukt Yuva for a Viksit Bharat. I do hereby pledge that I will not consume any harmful or intoxicating substance in any form or for any purpose. And I will also encourage others to stay away from intoxicants. I resolve to make
an active contribution towards building a Nasha Mukt Bharat and to make my family, friends, relatives, neighbors, and every person I come in contact with aware of the ill effects of substance abuse. I will remain dedicated to building a healthy, aware, and empowered youth. Power, and I will contribute fully towards realizing the resolve of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat. I will always uphold healthy values in life, carry the message of drug-free living to every individual in society, and work continuously towards building an aware, empowered, and drug-free India. Jai Hind. रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आए और इस अभियान के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का सारथी है। अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, उन्हें वॉलंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2,34,00,000 युवाओं का संगठन बना। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स हैं उसको साथ में लेकर विविध नशा मुक्ति में युवाओं ने 2 दिन का विचार विमर्श करा। ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का
यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करें। और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समेत घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह सामाजिक आर्ट और प्लेइंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से श्रद्धेय दाजी जी, BAPS से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल हमारे राज्य के आदरणीय और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास का बंधन करता हो आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम युवाओं का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायक झलकियां संकलित हैं। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जब यही शक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती है। हम अपने देश के युवा जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़े उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप
बनने के, आगे बढ़ने के, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के। लेकिन एक भूल उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। एग्जाम तक पढ़े, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। सिर्फ ये ऑफिसर बनेगा और हम तो इसके सिक्योरिटी चलेगा। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। थोड़ी देर यार, अरे पढ़ाई से बड़ी होती है जिंदगी, इसको एंजॉय करते हैं। और सपने देख, सपने देखने की जो मशीन होती है ना, यानी दिमाग, अगर उसका भी तो छुट्टी चाहिए। एक बार चल रहे हैं। अरे मैं नहीं जाऊंगा यार। बस एक बार, 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 बस एक बार। देख, जो सही इंसान होता है वो फैसला खुद करता है। Yes, you can do it. मैं तो बस मौका दे। लेकिन तुम हो कौन? नशा, नशा, जिसे दुनिया फूल कहती है, जिसे कुछ लोग स्टेटस कहते हैं, जिसे कुछ लोग आजादी समझते हैं, और बाद में मैं बन जाता हूँ लट। और सुन, मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब से भी आगे निकल चुका हूँ, गांजा और चरस से भी आगे। मैं तो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को मजे देता हूँ। देख, तुझे पार्टी तक ले आया है, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी। जिंदगी तेरी, इच्छा मेरी, सांसें तेरी, रफ्तार मेरी, सपने तेरे, फैसला नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता। अब से तू नहीं, केवल मैं चाहूंगा। मतलब अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल जल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में डूब देने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखती। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, ड्रग्स कुछ समय के लिए दिखाई देता है, लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। हमें नशे को किसी भी तरह की स्वीकार्यता नहीं देनी। साथियों, हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मती दूरी होई, बरलू बबई बिचियाई, आपना पराइया न पिछाड़े, खस बहु थके खाए। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान
अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत, ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर्मन को ताकत देती है। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोलकर के उनसे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें। मेडिकल हेल्थ में अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे कुएं में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम लें। आपको भनक आ जाए, थोड़ा टाइम बच्चे पता चलेगा कि बदलाव आ रहा है, वो खोया खोया लग रहा है, वो मुंह छिपा रहा है, कमरे में बंद हो जा रहा है, देर रात आ रहा है, पैसे अनाप शनाप मांग रहा है। ये सारी चीजों से पता चल जाता है, भनक आ जाती है, कुछ का मामला गड़बड़। साथियों, एक आह्वान मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं। आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें, नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। और साथियों, हमें एक और बात ध्यान रखना, जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं वे कमजोर नहीं होते। जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, उसे दूसरा अवसर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा किसी का अतीत उसकी पहचान नहीं हो सकता, उसका साहस उसकी पहचान होता है। साथियों, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां, हजारों करोड़ रुपयों की ड्रग्स भी जब्त की गई। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेगी।
मुझे विश्वास है हमारे देश का युवा नशे से मुक्त रहकर अपनी युवा ऊर्जा को न केवल संरक्षित करेगा बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को भी आगे बढ़ाएगा। और जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं। मैं इन सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन, आपके युवा साथी डिवोटी हैं, आने वाले 100 दिन हर एक संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है। पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उनके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्य करें। दूसरे सप्ताह दूसरे संगठन, दूसरी शक्ति सप्ताह पर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे, जगह रविवार को बड़ा कार्यक्रम। अगर 100 सप्ताह हमारे देश के ऐसे आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिल करके आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा। मैं एक बार फिर आप सबने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए। इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के महारथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 1 करोड़ से ज्यादा जुटे नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं माय भारत के वॉलेंटियर्स की बधाई करता हूं। वो जो भी ठान लेते हैं आजकल करके दिखाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे माय भारत के वॉलेंटियर्स को मिलने का मौका मिला। वे हिंदुस्तान के सीमावर्ती गांवों में जाकर के एक सप्ताह रुक कर गए, जिसे कभी देश का आखिरी गांव कहा जाता था, जिसको आज हम देश का पहला गांव कहते हैं। वहां जाकर के आए, उनके अनुभव बड़े प्रेरक। और आज इतना बड़ा कार्यक्रम माय भारत के वॉलेंटियर्स कर पाते हैं, ये अपने आप में उनकी राष्ट्र के प्रति जागरूक समर्पित भावना का प्रतीक। मैं उनकी भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल तक पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगा। आइए हम सब मिलकर के आगे चलें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक करें, आप उससे दूर रहें और इस संकल्प में आप राष्ट्रीय नशा हो गया सर। युवा अभियान की बड़ी साथियों, साथी का जरूरत होने के नाते मुझे एक बात আমি না আমি একটা ভাবছি এই যে ল্যাপটপটা চলছে এটা ম্যাডামের ঘরে গিয়ে বসিয়ে দিল গিয়ে ওইখানে ভিডিও ক্যাপচার করছে প্রজেক্টটা দরকার নেই ল্যাপটপ চলছে তো ল্যাপটপে দেখানো হচ্ছে এটা অভাব করা ছিল হবে এটা তবে ল্যাপটপটা घर है लगा के हमारे सामने देख रहा है सुन रहा है ये तो बिल्डिंग कर रहा है ऐसी लोग देख रहे हैं हाँ ये जैसे चल रहा है ये जैसा सब लोग देख रहे हैं उसको मिलेगा इसको बोलो तो वीडियो लेके आओ। एक सेकंड इसको पॉज कर दे एक बार। स्टैंड पे कर लो एंड टेबल पे रखो। बहुत सीरियसली सुनने की प्रिटेंड करो। Can you listen?
उसमें मेरा थोड़ा कनेक्शन है। अगर एनजीओ सिंगापुर कोई अप्लाई करेगा, बट मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं बनाएगा, मैं उठा के, मेरे पास एक डस्टबिन भी है, मैं प्रोग्रेस बहुत करती हूँ, मैं नहीं करती।